آپ اس آئینی ترمیم کے تحت ایک پورے انسٹیٹیوشن کو ہی ختم کر رہے ہیں، پہلی بات. اور یہ جو دوسرا انسٹیٹیوشن پیرلل لے کر آ رہے ہیں، اس کی انڈیپینڈنس کو ختم کر رہے ہیں. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، یہ تو آپ کا ہی، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کروں گا، یہ آپ کا پارلیمنٹ کا پپٹ ہوگا. یہ کانسٹیٹیوشنل سکیم نہیں ہے. جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے، جب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے، ہمیں کر کے دی جا رہی ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی ایسی کوئی طاقتیں ہیں، کوئی خلائی مخلوق ہیں جو کہ ہمارے پارلیمنٹ سے بھی سپریم ہیں اور ہماری پارلیمنٹ کو لا کر چیزیں دیتے ہیں. پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہوئی دکھ نہیں رہی، ان کو قانون بنا کر لا کر دیے جا رہے ہیں کہ جی جناب آپ نے بس پاس کرنا. بلاسفیمی تو بہت دور کی بات ہے نا کہ کس نے کمٹ کی، کس نے نہیں کمٹ کی، کون بلاسفیمر ہے یا کون بلاسفیمر نہیں ہے. جس پہ آپ نے الزام لگا دیا تو بس آپ کوئی دوسری گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا. ایز اف اٹ از اے ریس، ایز اف پیپل آر ناؤ ہنگری کہ ہمیں کوئی ملے جس کا ہم جو ہے نا سرتن سے جدا کریں تاکہ وہ ثواب ہم بھی کما سکیں. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس. آج ہم نے زحمت دی ہے لیوک وکٹر صاحب کو. اب وکیل ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، خاص طور پہ مائنورٹی رائٹس میں کام کرتے ہیں. اور جو لوگ لیوک صاحب کو نہیں جانتے وہ اس انٹرویو کے بعد دیکھیں گے یا اس کے دوران دیکھیں گے، بہت مدلل انداز میں، بہت بہتر طریقے سے، یا بہت بہترین طریقے سے اپنی بات رکھتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں. اس سے پہلے کہ موضوع کا تعارف کراؤں، لیوک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی اٹ از اے پلیجر ٹو بی آن یور شو ایز آلویز. اور میں بس تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں کہ آئی ایم اے لا اسٹوڈنٹ اینڈ آئی یٹ ٹو بی لائسنس، تو فار ٹیکنیکل پرپسز یہ کلیریفیکیشن بھی ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ونس اگین فار ہیونگ می آن دی شو. تھینک یو. جی صاحب، آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے کہ جو پاکستان میں سپریم کورٹ کا معاملہ ہو رہا ہے، کیا امینڈمنٹس ہیں، اور اس میں ایک عرض میں آپ سے کروں کہ جب میں آپ سے پہلا سوال کروں اس سے پہلے کہ دو معاملات ہیں جو ہم عام لوگوں کو نہیں سمجھ آتے. ایک لا نہیں سمجھ آتا اور ایک اکانومی نہیں سمجھ آتی. تو آج نا آپ نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے کے چلنا ہے اور سمجھانا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو پہلا سوال کرتا ہوں میں. جی شور شور. جی صاحب، ٹو اسٹارٹ ٹو بگن ود، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیا امینڈمنٹس ہیں؟ یہ بات شروع ہوئی تھی کہ فائدی صاحب کو شاید ایکسٹینشن مل رہی ہے، اس عقدے سے نکلا کچھ اور، ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں پہلے ہم اس پہ آ جائیں کہ امینڈمنٹ کی کیا گنجائش ہے. ویری اسٹریٹ وے آنسر ہے کہ جی بالکل پارلیمنٹ کے پاس، یہ پارلیمنٹ کی ہی ثوابدید ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم وہ کر سکتی ہے. بالکل یہ پارلیمانی حق ہے، پارلیمان کی ڈومین ہے یہ کہ وہ کسی بھی وقت لوازمات پورے کر کے اور جو ایک آئین کے اندر پروسیجر بتایا گیا ہے اس کے تحت وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. پہلے بھی 25 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، یہ 26ویں امینڈمنٹ لانے کی بات کی جا رہی ہے. اور بڑی ہسٹورک امینڈمنٹس بھی ہم نے دیکھی ہیں. 18ویں ترمیم کا اکثر ذکر ہوتا ہے، پھر 21ویں ترمیم کا ذکر ہوتا ہے. اور یہ 18ویں اور 21ویں ترمیم بھی کورٹس میں 2014 کے اندر جب کیس چل رہا تھا اور اس وقت یہ انڈر جوڈیشل ریویو سپریم کورٹ کے سامنے لائی گئی تھی. یہ ساری پہلی بات کہ جی پارلیمنٹ کے پاس بالکل ان کی ثوابدید ہے، ان کا ڈومین ہے، ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. آئین کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ جو 73 میں لکھ دیا گیا تو جس طریقے سے لکھا گیا تھا، جو الفاظ لکھے گئے تھے تو وہ شاید آخر تک وہی یہی رہنے ہیں اور ان میں کوئی بھی الفاظ اوپر نیچے نہیں ہو سکتے. بالکل ہو سکتے ہیں، بٹ اس کے اندر بھی 2 سے 3 چیزیں ہیں. اور یہ جب 2014 کے اندر جو ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی جس میں 18ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا اور 21ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا، اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ بڑا واضح یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی یہ جو پاور ہے آئین میں ترمیم کرنے کی، یہ بھی انفیٹرڈ اور انبریڈلڈ نہیں ہے. یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے چاہا کل کو وہ یہ لکھ دیں کہ جی ڈیموکریسی نہیں ہے، مونارکی بن گئی ہے. کل کو وہ یہ نہیں لکھ سکتے کہ جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. کل کو وہ یہ نہیں لکھ سکتے کہ جو ہمارے کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو وہ ختم کر دیں یا پورا نظام ہی چینج کر دیں. آئینی ترمیم آپ ضرور لے کر آ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی جو کہ آئین کے بیسک سٹرکچر کو ہی چینج کر دے. اور جو آئین کے اندر ایک 4 دیواری ڈیفائن کی گئی ہے کہ یہ ملک کا ایسے نظام ہے اور ملک کے اندر یہ جو سارے سٹیزنز رہتے ہیں ان کے یہ بنیادی حقوق ہیں، جس میں سے ایک بہت واضح ایک فنڈامنٹل بنیادی حق ہے ایکسیس ٹو جسٹس کا، کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی
और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए जस्टिस तक की रसाई हर एक शहरी का, हर एक इंसान का बुनियादी हक है। राइट टू लाइफ आप किसी का एंट्रेंच नहीं कर सकते। राइट टू लाइफ अब इतना एक्सपैंड हो चुका है कि आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब अतर मिल्ला साहब चीफ जस्टिस थे ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो जो कवान एक एलिफेंट का केस था उसमें उन्होंने मजीद एक्सपैंड करते हुए और उसकी तशरीह करते हुए ये कहा कि राइट टू लाइफ मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सिर्फ इंसानों तक महदूद भी नहीं है, बल्कि जो लिविंग क्रीचर्स हैं हर लिविंग क्रीचर के कुछ बुनियादी हक हैं। और टॉर्चर और एक अच्छी से जो है पाक जिंदगी और एक जो है एक अच्छे माहौल के अंदर और एक जिसको कहते हैं कि एक बुनियादी हकूक से भरपूर जिंदगी, वो सिर्फ सिटीजन्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे आइन की जो स्पिरिट है उसके अंदर जानवरों को भी और बाकी भी जो लिविंग क्रीचर्स हैं उनको भी इस चीज का हक मौजूद है। तो कुछ चीजें हैं कि जो कि अगर पार्लियामेंट चाहे भी तो एक लिमिट से ज्यादा वो ब्रीच करके आईनी तरमीम नहीं ला सकते। वो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्पिरिट, बेसिक एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी आईनी तरमीम से खत्म नहीं कर सकते। ये जो आईनी तरमीम आ रही हैं इसमें एक जो सबसे बड़ी जो एक दलाइल दिए जा रहे हैं कि ये इसको लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये क्यों लाई जा रही है और इसका डिफेंस क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। आज मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब सिंध बार काउंसिल में भी आके, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में उनकी तकरीर भी हुई और वहाँ भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे पहले हम उनका मुद्दा रखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया था मुशर्रफ साहब की तो सारे मामले के बाद, और उसके अंदर हमने लिखा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते इस मुल्क के अंदर ऑलरेडी? पहला सवाल ये बनता है जो बिलावल साहब ने बात की और वो कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए हैं। आम आवाम के लिए मैं बता दूं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आपके मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। आर्टिकल 199 के तहत हर सूबे का हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है उस सूबे की हद तक, और सुप्रीम कोर्ट की अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 184 में, और मजीद आगे आर्टिकल 187 भी उसको एक हद से ज्यादा अनफिटेड पावर्स देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, जो हम मजीद डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जो आईनी शिकें हैं वो आपके मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कोई एक न्यू चीज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, अब क्या बात की जा रही है? बात ये कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से हटके एक नया कोर्ट बना दिया जाए जिसका नाम तजवीज किया जा रहा है कि होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करने के लिए वाहिद ये कोर्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को एंटरटेन करने की और कॉन्स्टिट्यूशन जो के मुताबिक जितने केसेस हैं उनको डील करने की, वो सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रिप कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट से ले ली जाए, और ये जो नया कोर्ट बना दिया जाए ये महदूद और वाहिद कोर्ट होगा जिसके पास मुल्क के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आएंगे। हाँ, एक बड़ी अजीब सी बात है कि आर्टिकल 199 के तहत जो हाई कोर्ट्स के पास उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, उनको पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, अपने सूबे की हद तक जो भी आईनी मामला आते हैं वो हेबियस कॉर्पस के हो, वो रेट ऑफ को वारंटो के हो, वो किसी और किस्म की डायरेक्शन किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को देने हो, या कहीं भी आइन की पामाली हो रही हो, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराना हो, या किसी भी एग्जीक्यूटिव की या किसी भी और किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वायलेशन किसी भी सतह पे हो रही हो, तो आप आर्टिकल 199 के तहत उस सूबे की हद तक तो आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फेडरल लेवल के ऊपर अगर उस जजमेंट की, जो कि हाई कोर्ट अगर फरमाए कोई भी जजमेंट आर्टिकल 199 की पिटिशन पे, वो अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील नहीं जाएगी, बल्कि वो ऑटोमेटिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चली जाएगी। एक बड़ा ही घिचमिच निजाम बना दिया है जिसकी मंतक जो है वो समझ में नहीं आ रही। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग है बहुत ज्यादा केसेस का। जी बिल्कुल जरूर है, लेकिन उसी के साथ साथ आप देखें तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्पोजल रेट है वो भी खासा एक
बहुत अच्छे लेवल का है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमारे जजेस बहुत सुस्त हैं या काम नहीं कर रहे या किसी वजह से उनका डिस्पोजल रेट बहुत स्लो है। हम अगर कंपेयर करें इंडिया के साथ तो हमारे तो यहाँ मेरे ख्याल में गालबन मुश्किल से अभी 17 जजेस हैं, और जो अगर फुल कोर्ट के अंदर या एडहॉक के जो गुंजाइश है, जो फुल गुंजाइश है, अभी 17 पूरे भी नहीं है। और उसी के साथ साथ इंडिया में 34 है, और उसके बाद भी उनका जो बैकलॉग ऑफ केसेस है वो हमसे कई ज्यादा है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का है। बट अगर हम कंपैरिजन ना भी करें, बैकलॉग को खत्म करने के लिए मेरे ख्याल में जो बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में केसेस का, वो आईनी केसेस का नहीं है, वो है आपका जो सिविल केसेस से अपील आती हैं, उससे ज्यादा क्रिमिनल केसेस से अपील आती हैं, उनको किस तरीके से खत्म करना है, उसके ऊपर ये जो अमेंडमेंट है ये टोटली साइलेंट है। तो एक कानून का तालिब इल्म होते हुए अगर कोई मुझसे ये कहे कि जनाब बैकलॉग ऑफ केसेस और जो जिसको कहते हैं कि हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और डिस्पोजल रेट बहुत स्लो है, मैं और ये शायद आईनी तरमीम उसका कोई हल तजवीज करती है, एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे तो ये एक शैम बात लगती है, ये मुझे एक आई वॉश लगता है कि नहीं जनाब, इससे तो आप मजीद कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। और एक और बात कि असल जो बैकलॉग ऑफ केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, वो आपकी लोअर जुडिशरी में है। असल जो इशू है आपके मुल्क के अंदर वो ये है कि आपके ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल्स आपके 10-10 20-20 साल चलते रहते हैं, और जब वो अगर ट्रायल्स कंक्लूड भी हो जाते हैं तो असल में जो हायर जुडिशरी के पास इशू है, वो जो बैकलॉग का भी अगर आप इशू कहें तो वो इशू ये है कि आपकी फ्रिविलस अपील्स, फ्रिविलस पिटिशंस। और अभी एक वेरी रिसेंटली एक केस के अंदर मेरे ख्याल में गालबन काजी फायज ईसा साहब ने ही ये फरमाया था कि इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमारा जो है टॉर्ट का निज़ाम और सू करने का, डेफेमेशन का निज़ाम बहुत अंडर डेवलप्ड है। ये मेरे ख्याल में जो अभी जो कंटेम्प्ट का केस चल रहा था फैसल वावडा साहब के खिलाफ, और उसमें जो है उसके अंदर उनके रिमार्क्स थे कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अभी तक डेफेमेशन का और ये टॉर्ट का जो लॉ है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये अंडर डेवलप्ड है। और ये इसलिए डेवलप होना जरूरी है, डेफेमेशन असाइड एक टॉर्ट का और एक वैसे जनरली आपकी फ्रिविलस लिटिगेशन के ऊपर, जबकि कानून गुंजाइश देता है, आपके सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर भी कॉस्ट इम्पोज करने का कंसेप्ट है, आपके क्रिमिनल केसेस में भी फ्रिविलस केसेस के ऊपर कॉस्ट इम्पोज करने का कंसेप्ट है, डैमेजेस के सूट्स का सेक्शन 9 सीपीसी में, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस तो अलग से है 2002 का। ये सारे कंसेप्ट हैं, जिससे होना क्या है कि जो लोग झूठे मुकदमे बना रहे हैं, जो आए दिन एफआईआर कटवा रहे हैं, जो फ्रिविलस अपील्स फाइल कर रहे हैं, जो मैल इंटेंशन के साथ जो है मिलिशियसली मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन करके कोर्ट्स का भी वक्त जाया कर रहे हैं, लिटिगेशन को भी ड्रैग कर रहे हैं। और आम आवाम का असल मसला ये है कि लिटिगेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन हो जाती है और वो फिर ड्रैग होती रहती है। इसको खत्म करने का तरीका है कि जो फ्रिविलस लिटिगेशन है, जो फ्रिविलस केसेस हैं, जो फ्रिविलस अपील्स हैं, जो फ्रिविलस पिटिशंस हैं, जब आप उनको डिसमिस करें तो आप उस पर कॉस्ट इम्पोज करें, आप उन पे इस तरीके की सजा दें ताकि जो जिसने आदत बना ली है कि आए दिन उल्टे सीधे केस हम फाइल करते रहें, एक केस में से 4 मजीद केस पैदा कर दें, और एक जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो ज्यादा वकील कर सकता है, वो अपने गरीब अपोनेंट को दबाता रहता है, उसकी किसी तरीके से रोकथाम करें। असल बैकलॉग यहां जाकर खत्म होगा। दूसरा एक बड़ा मसला ये है कि आपका जो बैकलॉग लोअर जुडिशरी के अंदर है वो इसलिए भी है कि एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। जब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स देता है, जितनी मजीद बेंचेस होंगी, जितनी मजीद आप जो है ना उसको एक्सपैंड करते जाएंगे, देयर इज ऑलवेज दिस पॉसिबिलिटी कि 2 डिफरेंट बेंचेस अगर एक चीज के ऊपर कॉन्ट्रडिक्टरी फैसले दे दें तो एक अजीब सी जो है ना खिचड़ी, एक मिक्स जूरिस्प्रूडेंस बन जाती है। जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि आपके लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बेल मैटर में 2021 के अंदर एक जज साहब ने ये कह दिया कि जो चाइल्ड मैरिज का केस होता है, चाइल्ड मैरिज एक तरफ इलीगल भी है लेकिन वो निकाह नामा वॉइड नहीं होता, वो जायज निकाह नामा होता है। उसको मजीद जाके अगर आप सेटिसाइड करवाएं, सूट फाइल करें फॉर जैक्टेशन तो वो एक बात की बात है, लेकिन उसको उस निकाह नामे को वैलिड तस्वर किया जाएगा। ये लाहौर हाई कोर्ट की एक बेल मैटर के अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन दी अदर हैंड 2022 के अंदर बाबर सत्तार साहब की जजमेंट है 2022 के अंदर कि चाइल्ड मैरिज जो है एक तरफ जहां पर क्राइम है, वहां जो निकाह नामा है इट इज वॉइड एब इनिशियो,
और उसको किसी किस्म की लीगल क्रीडेंस नहीं देनी चाहिए और उसे वॉइड तसव्वुर करना चाहिए। अब इससे हुआ क्या, कराची के अंदर मेरा ही एक केस, मेरी लीगल टीम उसको देख रही थी, चाइल्ड मैरिज के केस को। हमने नेचुरली बाबर सत्तार साहब की जजमेंट इन आर जो है फेवर हमने रखी। हम प्रोसिक्यूशन साइड को सपोर्ट कर रहे थे, हम कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जनाब जो निकाह नामा है वो वॉइड एब इनिशियो है और उस निकाह को इलीगल और वॉइड तस्वुर किया जाएगा। जज साहब ने जब अपनी जजमेंट फरमाई तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशंस थे उसको रिप्रोड्यूस कर दिया और मेरे खिलाफ उसमें आ गई, फैसला आ गया। तो यू सी जो असल इशू इस मुल्क का है कि जो एक हमें कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन फॉलो करते हैं, एक स्टारे डिसाइसिस का कंसेप्ट है, इसको मजीद जो है बेहतर करने की, दुरुस्त होने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में यहाँ तक बात बहुत एतराज जो हमारे सियासी दोस्त भी करते हैं, और ये सिर्फ सियासी दोस्त नहीं करते, ये आपको लीगल फ्रेटर्निटी भी, आपको जुडिशरी खुद भी इस बात पे एतराज करते हुए अक्सर औकात दिखेगी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इट इज हमारे सामने है कि कैसे 2018 के अंदर समीउल्लाह बलोच जजमेंट के अंदर आपने एक तरफ पहले 5 साल अभी भी पूरे नहीं बल्कि 4 साल गुजरे हैं, आपने कहा कि सादिक और अमीन एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होती है, और उसके बाद जो फिर चल रहा था उसकी आगे रिव्यू और मजीद आगे पिटिशंस, तो उसके अंदर वो टोटली चीज ओवरटर्न कर दी। बात का मकसद क्या है, लुब्बे लुबाब ये है कि जहां पर जुडिशरी के अंदर कुछ खामियां भी हैं, वो जुडिशरी की अगर खामियां उनकी इंटरप्रिटेशन और कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स की हैं, उसका हल भी सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी खुद ही कर सकती है। यही बिलावल भुट्टो साहब जब अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का तो आज मामला शुरू हुआ, और ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इसके पीछे जो इंटेंशन है ये मैलिशियस इंटेंशन है। ये पीडीएम की गवर्नमेंट फरवरी से आई हुई है, ये फरवरी से लेके आज तक इनको ख्याल नहीं आया था कि 26वीं अमेंडमेंट दें या सुप्रीम कोर्ट का बॉयकॉट करें या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाएं, बल्कि यही बिलावल साहब ने चाहा था और बिल्कुल दुरुस्त चाहा था कि एक पेंडिंग रेफरेंस था आसिफ अली जरदारी साहब ने जब से फाइल किया हुआ था, भुट्टो साहब की जो उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था उस पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट को काफी अरसा गुजर गया था, तो उस पर फैसला लेने भी वो सुप्रीम कोर्ट के दर पे आए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था जब भुट्टो साहब को फांसी टंगाई गई थी, लेकिन उसको दुरुस्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ही किया। आज के दौर में यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने माजी की अपनी गलती को मानकर उसको दुरुस्त करने की उनमें जरूरत थी और उन्होंने उसको दुरुस्त किया। और यही पार्लियामेंटेरियंस, यही जो अवाम के नुमाइंदे हैं और यही सारे जो पावर स्ट्रक्चर के पावर स्टेक होल्डर्स हैं, ये इसी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर यकीन करते हुए उस रेफरेंस में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात की जा रही थी, और इस पे भी मैं कमेंट करता चलूं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को हम रेगुलेट करें और ये करें, ये बड़ा एक इसके पीछे ना एक मंतक और अजीब सी है, एब्सर्डिटी मैं बयान कर दूं, मैं इसको कहूंगा एब्सर्डिटी, कि आपने इस गवर्नमेंट ने कुछ चंद ही महीने पहले एक कानून साजी करते हुए आइन के अपने हक के मुताबिक आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को डिफेंड किया कि ये अच्छा कानून है, ये आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बेंच बैठी जिसमें से मेजॉरिटी कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि जी ये बिल्कुल वैलिड लॉ है और ये लॉ होना चाहिए है। इस लॉ का अपना सेक्शन, अपने प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को रेगुलेट करते हैं। आइन के मुताबिक कौन सी स्पेसिफिक बेंचेस होनी चाहिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुप्रीम कोर्ट में कैसे रेगुलेट होने चाहिए हैं, और एक बेयर मिनिमम कौन सी बेंच होनी चाहिए है, ये तो ऑलरेडी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट रेगुलेट करता है, जो कि ये बताता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स और आईनी तशरी का केस होगा, जहां पर भी आईनी तशरी का केस होगा, वो कोई भी बेंच नॉट लेस देन 5 मेंबर बेंच उसको सुन सकती है। तो ये तो आपने रेगुलेट कर दिया, तो क्या उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया था कि जी ये पूरा निजाम ही गलत है और हमें अलग से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना लेना चाहिए है? और अब जबकि एक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए और बहुत अच्छा कानून आप ले आए, और एक जो कंसेप्ट था कि चीफ जस्टिस अकेला वन मैन शो बने और वो अपनी लाइक माइंडेड बेंचेस बनाते थे, उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर बड़ा ये इल्जाम लगाया जाता था
और इवन जब सीनियर प्यूनी जज साहब थे काजी फायज ईसा साहब एंड ही वाज द सीनियर प्यूनी जज, तो उन्होंने बड़ी खतो खिताबत की एंड एट वन मोमेंट इन टाइम ही इवन रिफ्यूज टू सिट ऑन एनी बेंच, और जो है वो इस तरीके से कि और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फायद ईसा साहब ने सबसे पहले यही केस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला ही उठाया था और ये फुल कोर्ट को लाइव प्रोसीडिंग्स करते हुए ये सुनाया था और इसको सराहा था कि जी ये बहुत अच्छा कानून है कि इससे कल को फॉर ऑल टाइम्स कि ये जो तसव्वुर किया जाता है कि एक वन मैन शो है चीफ जस्टिस और शायद चीफ जस्टिस के पास अनफिटेड पावर्स हैं और एक एप्रीहेंशन है, वो जायज एप्रीहेंशन हो या नाजायज हो, लेकिन एक एप्रीहेंशन है कि मैनेजमेंट की जाती है, मैन्यूवर किया जाता है और वो एक विम्स एंड डिजायर्स चीफ जस्टिस अपने इस्तेमाल करके लाइक माइंडेड बेंचेस बना के और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं फैसले को। इसको खत्म किया जाए, 3 रुकनी हम कमेटी बना देते हैं जो कि 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सी बेंच बननी चाहिए कौन सी नहीं बननी चाहिए। बात रही कि सुप्रीम कोर्ट के जो अपने मसाइल हैं, हमने माजी में देखा है कि जी बिल्कुल रहे हैं, प्रॉब्लमैटिक जजमेंट्स रही हैं। हमने ज़रूर ये भी देखा है कि किस तरीके से ज़रूर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी रही है और एक जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का नोशन है, इट हैज़ परहैप्स नॉट बीन सो इंडिपेंडेंट, बट आहिस्ते आहिस्ते एज एवरी इंस्टीट्यूशन रेक्टिफाइज इटसेल्फ, करेक्ट्स इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट में भी गुंजाइश है कि वो अपने आप को करेक्ट करे और वो करती रही है। और अगेन मैं दोहरा दूं कि समीउल्लाह बलोच का केस हुआ, उसके बाद उसको दुरुस्त किया गया, अगर भुट्टो साहब को टंगाया गया तो भले 50 साल बाद, लेकिन एट लीस्ट उसका एक अजाला जो भी पॉसिबल था, एक डिक्लेरेशन सही, एक एतराफ सही कि जी वो गलत हुआ था, वो भी हुआ। एंड बहुत कुछ ऐसे ऐसे केसेस है, रिको डिक का केस है और मजीद हैं कि वो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन की जहां उसने गलतियां की हैं तो वहां उसमें गुंजाइश है कि वो अपने आप को करेक्ट करे। हाँ, ये कहें कि जी ये जो इस वक्त सारा जो निज़ाम है इसकी गलती सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है, नो नॉट एट ऑल। पार्लियामेंट की भी उतनी है, एग्जीक्यूटिव की भी उतनी है। मेरे ख्याल में जो जबरी गुमशुदगी है, जबरी गुमशुदगी सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट में नहीं हो रही। जो 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक खत गया है कि जी हम आज़ाद जुडिशरी फील नहीं अपने आप को करते क्योंकि हमें दबाने की कोशिश की जाती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की और मजीद कुछ अनासर की जो है हमारे साथ बीच में मदाखलत की कोशिश रहती है, जिससे नेचुरली बीइंग एक ह्यूमंस आफ्टर ऑल हम भी इंटिमिडेट होने की वो कैपेसिटी होती है। एंड वी आर राइटिंग टू आवर सुपीरियर कोर्ट, वी आर राइटिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आप जो है इस पे कुछ आके वे फॉरवर्ड बताएं, कुछ इस पे देखें कि क्या मामले की जो है दुरुस्तगी हो सकती है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में कि अगर पार्लियामेंट ये चाहती है ना, और जो मैंने कहा कि असल में मसला क्या है जो मैं देख रहा हूँ सियासी एटमॉस्फेयर के अंदर, मसला ये है कि जब हमारे फेवर में जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट की तो हम कहेंगे कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जब हमारे खिलाफ आ जाए तो हम कहेंगे नहीं जी ये तो आइन की धज्जियां उड़ गई हैं और ये तो मैनेजमेंट हो गई है और ये बिक गए हैं और पता नहीं क्या हो गया उसके अंदर। ऐसे नहीं, एतराज भी वो होना चाहिए है जो असूल पे हो। हाँ, बहुत जजमेंट्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर सही मायनों के अंदर एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं भी एग्री नहीं करता और एग्री नहीं करना चाहिए। पार्लियामानी निज़ाम, पार्लियामेंट के जो लोग हैं, अगर वो सही मायनों के अंदर ऑन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल किसी चीज़ पे, किसी जजमेंट पे एतराज़ करें, वो उनका हक है, उसका वे आउट भी दिया हुआ है, उसके अंदर लीगल फोरम्स भी हैं। कोई जज की अगर करप्शन आप पकड़ते हैं, कोई चीज़ होती है, तो हमने मज़ाहिर अली नकवी साहब का देखा, केस देखा, उससे पहले भी देखे कि देयर इज एक जो है ना अकाउंटेबिलिटी की उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है, गलत जजमेंट्स को क्योर करने का भी मैकेनिज्म बताया हुआ है। आप ये कह दें कि जी हम पूरा इंस्टीट्यूशन ही खत्म कर देंगे और कोई पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा कर देंगे, दिस रीक्स ऑफ मैलिस, दिस रीक्स ऑफ योर इंटेंशन के आप असल में ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कि इस वक्त आइन के अंदर एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट जो एक जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है उससे सेपरेट है पार्लियामेंट से। और इसमें मेरे ख्याल में सुप्रीम और इंफीरियर होने की बात नहीं है कि सुपीरियर कौन है और इंफीरियर कौन है। पार्लियामानी सुप्रेमेसी भी अपनी जगह एक सैंक्टिटी वाली चीज है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और पार्लियामेंट बीइंग सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट
to judicial review, their actions being subject to judicial review as held in the 18th amendment and 21st amendment case. ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पार्लिमानी सुप्रेमेसी के ऊपर इंक्रोच कर रही है जुडिशरी, बल्कि पार्लियामेंट को भी चेक रखने की जहां पर जरूरत है। तो वो मेरे ख्याल के अंदर जिसको कहते हैं ना कि एक इनकंसोनेंस और एक दो मुख्तलिफ चीजें एक दूसरे को संभाल कर चलना और एक दूसरे की सपोर्ट बनकर चलना, जुडिशरी ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की जो बात है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी हैव ऑलवेज बिन जो रोल एक दूसरे के साथ रहा है वो इन सपोर्ट रहा है। किसी को खत्म करना, किसी के डोमेन में एंट्रेंच करना, इंक्रोच करना, ये इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सबके डोमेन अलग अलग है और उसकी डोमेन ये है कि आप मिलकर एक दूसरे को भी चेक में रखें और एक दूसरे को चेक में रख के इलेक्टोरेट के लिए, इस अवाम के लिए, इस निजाम के लिए बेहतरी का बायस बने और बेहतरी की तरफ चले। ल्यूक साहब, आपने बार बार कहा कि ये इसमें इंटेंशन खराब है। क्यों आपको लगता है इंटेंशन खराब? टाइमिंग शायद खराब हो सकती है, लेकिन इंटेंशन क्यों खराब है? अगर पार्लियामेंट चाहे एक नई कोड बनाना, बिकॉज ऑफ द कंटेंट। देखें, दो चीजें कि न्यू कोड बनाना, एक न्यू जो है ना, कोई अदालत, आप जैसे आप अगर एक कानून साजी करके आप एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बना दी, बात की जाती है कि जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की जजमेंट थी माइनॉरिटीज़ के लिए, और ये भी हाल में भी ये तजवीज़ दी गई कि माइनॉरिटी इश्यूज़ के ऊपर और ख़ास तौर से जो इस तरीके से ब्लास्फेमी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, अगर कोई स्पेशल कोर्ट्स बना दी जाएँ ताकि इनको जल्दी टैकल किया जाए और इन सारे मसाइल का, तो न्यू कोर्ट्स को क्रिएट करना इज़ नॉट द इशू। बट यहाँ पर एक सिर्फ न्यू कोर्ट नहीं क्रिएट की जा रही, यहाँ पर एक न्यू सुप्रीम कोर्ट क्रिएट की जा रही है अबव द सुप्रीम कोर्ट, और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसको टोटली रिडंडेंट किया जा रहा है। एक सुपरा सुप्रीम कोर्ट जिसको मैं कहता हूँ क्रिएट की जा रही है। अच्छा, शायद उससे भी इतना ज्यादा किसी को इख्तलाफ नहीं होता अगर तो उसकी फॉर्मेशन, उसमें जजेस का चुनाव, वो भी एक एडेड इशू इसके अंदर मुतनाज़ा नहीं बना दिया होता जो ये अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। द वे जो एक ये पहली बात है कि चले इस पर भी मैं कमेंट कर दूं कि ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इससे मैं वेरी ब्रीफली, मैंने पहले भी कहा था, मैं दोहरा दूं कि हम एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हैं। ये एक सिविल जो जहाँ पर कोर्ट्स का जो कंसेप्ट होता है ये उन कंट्रीज का है, और यहाँ पर एक खिचड़ी बन जाएगी। और जो तरमीम लेकर आई जा रही है उसके अंदर जब कहा जा रहा है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हम इसका बना रहे हैं, उसी में आप देखें तो आइन के आर्टिकल 190 की भी तरमीम की जा रही है और मजीद आर्टिकल्स की तरमीम ये की जा रही है कि जो आज तक के सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले थे और जो भी आज तक की जूरिस्प्रूडेंस 77 ईयर्स के अंदर डेवलप हुई है, हमारी जितनी रिच जुडिशियल हिस्ट्री है, वो बाइंडिंग नहीं होगी। दैट हैज नो बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कल को जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर कल बन जाती है, वो तो कहती है जी आज तक की जितनी जूरिस्प्रूडेंस बनी थी हम इसको उठा के रद्दी में फेंकते हैं, हम कोई नया तशरी लेकर आते हैं, कोई नया मंतक लेकर आते हैं। जो उनको एक अनफेटेड पावर्स दे दी गई हैं, दैट इज व्हाट इज प्रॉब्लमैटिक, दैट इज व्हाट शोज द इंटेंशन। ये करना क्या चाह रहे हैं, कौन कौन से फैसलों को ओवरराइड करने चाह रहे हैं। इनको इतनी अनफेटेड, इतनी अनब्रिडल्ड पावर्स दे दी हैं कि आज तक की एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में रह के एक जो लोग समझते हैं स्टारे डिसाइसिस का कंसेप्ट, इवन द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड बाय स्टारे डिसाइसिस। ये कुछ जो चीजें हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्टारे डिसाइसिस होता है, एक वर्टिकल स्टारे डिसाइसिस होता है। बहुत सारी चीजें जब हम देखते हैं कि उसके अंदर इसलिए अच्छा जरूरत होती है कि अगर इतना पुराना फैसला एक सर्टेन लेवल ऑफ बेंच ने, अगर फॉर एग्जांपल 5 रुकनी बेंच ने कर दिया है, तो 5 रुकनी बेंच ही उसको आगे जाके फ्यूचर के अंदर उसको अमेंड नहीं कर सकती, उसको रिव्यू करके उसकी अपील के अंदर। और अगर वो बैड लॉ सेट हो गया था, उसके रेशो से आप अगर डिसएग्री करना है तो वो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी। तो देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ स्टारे डिसाइसिस। स्टारे डिसाइसिस के कंसेप्ट को वर्चुअली यहाँ पर तहस नहस किया जा रहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये जीरो से एज इफ पाकिस्तान आ रहा है, हमारी जूरिस्प्रूडेंस आज बन रही है, और इस उनको एक ऐसी अनफेटेड पावर दे दी है कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जज
कोई भी jurisprudence that is not binding upon you. हाँ, ये कि आज से ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है, इसके जितने फैसले होंगे वो इवन इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है, उस पर भी बाइंडिंग होंगे। ये इनका जो इन्होंने कह दिया वो हरफ आखिर होगा, और जो इन्होंने कह दिया बस वो आखिरी बिल्कुल लकीर होगी पत्थर पे, और उससे आगे कोई दूसरी बात नहीं होगी। तो एक पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा कि जो इसके अंदर जुडिशरी का चुनाव है वो इतना ज्यादा, आपने इंडिपेंडेंस के ऊपर डायरेक्ट वार है, मैं ये कहूंगा। आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को डाइल्यूट किया, आप सारे पार्लियामेंटेरियंस बीच में ले आए, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, उनकी सवाबदीद आपने कर दी। पहला जो चीफ जस्टिस इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का चुना जाएगा वो प्रेसिडेंट चुनेंगे, और जो पहले जो जितने भी जो जजेस हैं बाकी इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के, तो वही जो जज, जो चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट प्रेसिडेंट ने चुना है, वो और प्रेसिडेंट मिल के चुन लेंगे। तो ये तो वही बात हो गई जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खत्म करना चाह रही थी, कि एक जो मर्जी की बेंचेस बनती हैं और एक चीफ जस्टिस मर्जी की बेंचेस और अपने जो लाइक माइंडेड दोस्त साथी जजेस होते हैं उनकी बेंचेस बना के और जल्दी जल्दी फैसले करने की कोशिश करते हैं। आपने तो एक पूरा कोर्ट ही वो बना दिया कि जी दो दोस्त बैठ के आपस में, और वो अपनी पूरी लॉबी, अपनी पूरी ए टीम जो है उसको सिलेक्ट करके ले आए कि भाई ये ड्रीम टीम है, और अब जो लाइक माइंडेड हैं इसमें कोई डिसेंट नहीं करेगा, और जो जैसे जो हम बोलेंगे बस वैसे ही होगा। मैंने अगेन ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी चीज से, किसी फैसले से किसी को इशू है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की माजी की गलतियों की, मौजूदा गलतियों की रेक्टिफिकेशन के लिए प्रोसीजर्स खुद प्रोवाइड करता है। वो फैसलों की रेक्टिफिकेशन हो या किसी जज के कंडक्ट और कैरेक्टर की, जज की रेक्टिफिकेशन, सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं। आप इस आईनी तरमीम के तहत एक पूरे इंस्टीट्यूशन को ही खत्म कर रहे हैं, पहली बात। और ये जो दूसरा इंस्टीट्यूशन पैरेलल लेकर आ रहे हैं, इसकी इंडिपेंडेंस को खत्म कर रहे हैं। ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये तो आपका ही, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करूंगा, ये आपका पार्लियामेंट का पपेट होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है ट्राइकोटमी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी जो कि पार्लियामेंट के ऊपर भी इन चेक रख सके। इस आईनी तरमीम के तहत एक बीच में सेक्शन ये भी आ रहा है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल उसके पास ये पावर नहीं होगी कि किसी भी आईनी तरमीम को भी उसको चैलेंज सुन भी सके, उसको एंटरटेन भी कर सके, या उसको इन क्वेश्चन बुला सके। तो जो 2014 की सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की जो मेजॉरिटी की जजमेंट थी, उसके अंदर जो प्रिंसिपल सेट हुआ था कि पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई गलत काम करती है जो कि आइन के टोटल बरक्स होता है, उसको इन चेक करना और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी, ये भी जुडिशरी का काम है। और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसीलिए लाजिम है। आपने तो डायरेक्ट उस पे जाके वार किया है कि जी ऐसी जुडिशरी बना दो कि कल को हम जो मर्जी करते रहें, कोई पूछने वाला ना हो। तो अगेन जो मैंने कहा ना कि असल मसला ये नहीं है कि जुडिशरी के अंदर कोई खामी है या जुडिशरी के अंदर किसी किस्म का कोई जो है ना कोई बहुत ही कुछ गलत फैसला हो रहा है या कुछ हो रहा है। असल मसला ये है कि इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स है वो ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी के फैसले हैं। ये पूरी आईनी तरमीम का जो कंटेंट है, इससे यही इल इंटेंट दिखता है कि आपकी इल इंटेंशन ये है कि जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे, ये तो फॉर ऑल टाइम्स की भी बात मैं नहीं कर रहा, उनकी तो ये इंटेंशन है कि जब तक हम बैठे हुए हैं, और शायद इंटेंशन ये है कि हम आने वाले 20 साल तक ही हम बैठे रहें और कोई डिसेंटिंग इंसान हो ही ना, जो हमारी बात से और हमारे स्ट्रक्चर से हटकर हमारे खिलाफ कोई बात करने वाला हो, हमारा कोई कॉम्पिटिशन हो ही ना। हम सारा कंपटीशन वाइट वॉश करके, और एक आखिरी जो इंस्टीट्यूशन रह गया था जो हमारे किसी भी काम को क्वेश्चन में ला सकती है, उसको भी हम अपने मातहत कर लें और उसको भी जो है हम अपना सबॉर्डिनेट बना लें। ये इल इंटेंशन है जो प्राइमा फेसी मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, जो बज़ाहिर इस आईनी तरमीम के जो प्रपोज कंटेंट्स हैं उससे जाहिर होती है। ल्यूक साहब, अगर बहुत स्पेसिफिक आप हाँ या ना में मुझे जवाब दे सकें, अगर मुमकिन हो तो, पार्लियामेंट चाहे इंटेंशन कोई भी हो, पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी कर सकती है या नहीं? देखिए, मैंने ये पहले भी चीज कही कि नहीं देखिए, एक ऐसी, मैं दो बातें करूंगा कि
आइन में, मैं दोबारा दोहराऊंगा कि आइन में तरमीम करना ये पार्लियामेंट का हक है, उनकी अपनी डोमेन है, वो ही कर सकते हैं आइन के अंदर तरमीम, लेकिन कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकते जो कि एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दें। कल को वो ये तरमीम करके नहीं ला सकते कि जिंदगी भर तक आसिफ अली जरदारी साहब ही जो है वो प्रेसिडेंट रहेंगे। वो ऐसी तरमीम करके नहीं ला सकते कि जी हम जो है एक मोनार्की बना रहे हैं या कुछ और इस तरीके से ला रहे हैं। वो ऐसी तरमीम नहीं कर सकते जो कि ये कहे कि नहीं जी, जो कि ये करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको इस पे भी कमेंट करता हूँ कि इसके अंदर जो लाई जा रही है, इसमें सिर्फ जुडिशरी को नहीं बल्कि आपके और मेरे बुनियादी हकूक को जो एक पामाल किया जा रहा है, उनको कटेल किया जा रहा है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि आप कोई भी ऐसी कानून साजी नहीं कर सकते, कानून नहीं बना सकते इस मुल्क के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिफाइंड एक शहरी के, एक इंसान के जो बुनियादी हकूक हैं उसको ब्रीच करता। ऐसा कोई कानून साजी नहीं हो सकती। कल को अगर आप ऐसी आईनी तरमीम ले आए जिसमें से आर्टिकल 8 ही हटा दें, ये हो सकता है क्या? नो, नॉट एट ऑल। यही 2014 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि आप जो आइन में अगर तरमीम भी लेकर आए, वो ऐसी तरमीम नहीं हो सकती जो कि आइन के बुनियादी एसेंस को ही वायलेट कर दे। एक जमहूरी निज़ाम में हम रहते हैं जिसके एक सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इनवायलेबल फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एक फंडामेंटल कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे आप और मैं महफूज हैं, और जिससे आप और मैं कल को हमें अगर जबरी तौर पे उठाया जाता है, गायब किया जाता है, कोई नाइंसाफी होती है, हमारे वोट बार्टरिंग होती है, अगर किसी किस्म का जो आज जो जगह जगह शोर हो रहा है कि जी ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये इलीगल हुए हैं, इसका भी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हम अदालत पे ही जाते हैं। तो अगर ये पूरा निज़ाम ही आईनी तरमीम के तहत आपने एक जिसको कहते हैं ना सब्जेक्ट टू द विम्स एंड डिजायर्स ऑफ दो सिटिंग इन द पार्लियामेंट कर दिया, तो फिर तो मेरे ख्याल के अंदर जो मौजूदा बैठे हुए हैं ये फॉर ऑल टाइम्स तायात ये डिक्टेटर्स ही बन जाएंगे, और ये असल में अपनी डिक्टेटरशिप ही लेकर आना चाह रहे हैं। एक आइन का लबादा उड़ के, एक सो कॉल्ड जमहूरियत का लबादा उड़ के ये डिक्टेटरशिप को ही नाफिज करना चाह रहे हैं। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट ही ना हो, जहाँ पर अब जो मैं जो बात कर रहा था कि इस अमेंडमेंट के अंदर एक और जो बड़ी जो बात है, एक जिसको कहते हैं खौफनाक, वो ये है कि आर्टिकल 199 की तरमीम की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी कोर्ट किसी भी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ, किसी भी और कोई भी जो हमारे एक कंसेप्ट है मुल्क के अंदर अननोन्स का, और जो एक कंसेप्ट है कि चले वो और भी जितने सारे मामला आते हैं कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, बुनियादी हकूक की मेरी या आपकी वायलेशन हो रही है, हम उसके खिलाफ आईनी अदालत में नहीं जा सकते अगर तो जो मेरे हकूक की वायलेशन कर रहा है वो ये डिफेंस ले ले कि जी मैं तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी कहीं डिफाइंड नहीं है। कल को जो बलोचों को अगवा किया जा रहा है, गुमशुदा किया जा रहा है, या वजीरिस्तान से किया जा रहा है, या किसी को भी किया जा रहा है, वो जब डिफेंस में आते हैं, पुलिस आती है, कोई भी आती है और अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, तो ये कहते हैं कि जी हम तो इन परस्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी की आड़ के अंदर तो आपने ऐसे रास्ते खोल दिए हैं कि जिसका जो दिल चाहे, जिसके पास पावर है, वो नेशनल सिक्योरिटी की आड़ के अंदर आपके और मेरे फंडामेंटल राइट्स को जब मर्जी पामाल करना चाहे, मैं अदालत में उसके खिलाफ कोई अजाला लेने नहीं जा सकता, उसके एक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता, और बस जो हो गया वो हो गया। तो ये डिक्टेटरशिप नाफिज की जा रही है, जिसके अंदर ना तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इस मुल्क में रहेगी और ना ही आपके और मेरे बुनियादी हकूक सेफ रहेंगे। एवरीथिंग विल बी सब्जेक्ट एंड जिसको कहते हैं ना कि सबऑर्डिनेट टू द विम्स एंड डिजायर्स ऑफ दोज हु आर करंटली लॉर्डिंग ओवर अस। ल्यूक साहब, इसको अगर हम इस तरह देखें, अगर हम यूएस से कंपेयर करें, मैं समझता हूँ, मैं इस पूरे मामले को ना समझना चाह रहा हूँ आईनी और कानूनी हैसियत से। अगर हम यूएस को देखें, वहां भी तो जजेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कांग्रेस उसको पास कर देती है। तो इस आइडिया में कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करे और उसका हेड बनाकर फिर बाकी जजेस को अपॉइंट कर लिया जाए, ये आइडिया दुनिया में इसका कोई ना कोई अक्स तो प्रेजेंट है, तो इस आइडिया में कोई फ्लॉ तो नहीं है ना? मैं सिर्फ आइडिया की बात कर रहा हूँ। देखिए, आइडिया जो आपने यूएस का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अभी जैसे वो ब्रेट कैवेनॉ का अभी चुनाव हमने देखा, और उसके बाद एमी कॉनी बैरेट का भी हमने देखा कि उनकी बड़ी कांग्रेस के सामने खुली कचहरी लगती है, सवाल जवाब होते हैं,
اور جو ہے وہ بالکل جو بھی ساری اسکروٹنی ہوتی ہے وہ پبلک کے سامنے ہوتی ہے، بلکہ وہ کانگریس کے سامنے بھی صرف نہیں ہو رہی ہوتی، وہ لائیو ٹیلی وائزڈ ہو رہی ہوتی ہے، ساری لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی ہے کیونکہ عوام کی قاضی آ رہے ہیں، عوام کا قاضی چنا جا رہا ہے، تو عوام کا حق ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک آن اے تھیوریٹک پلین، اور یہ جو آپ نے کہا کہ کیا آئیڈیا برا ہے، تو آئیڈیا تو برا نہیں ہے کہ جی اگر جو عوام کا قاضی چنا جا رہا ہے تو عوام کے جو نمائندے ہیں وہی چنیں اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ پارلیمنٹ بھی الٹیمیٹلی جو کنسیپٹ ہے، کانگریس جو کنسیپٹ ہے وہ عوام کے نمائندے، تو میرے نمائندے میرا قاضی چن رہے ہیں، اس کے اندر ان سمپل ورڈز کے اندر تو مجھے کچھ برا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ماڈل اپنانا اس ملک میں، ایسے ملک کے اندر کہ جہاں پر جو میرے نمائندے ہیں ان پہ ہی سوال اٹھا ہوا ہے، انہی پہ آپ کی آدھی عوام نے، اور جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکثریت عوام ہے، کہ اکثریت عوام نے یہ سوال اٹھایا ہوا ہے کہ یہ جو اس وقت ہماری پارلیمنٹ ہے یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارا ووٹ چھین کر اور ووٹ جس کو کہتے ہیں مینیپولیٹ کر کر آ کر بیٹھے ہیں۔ اور آپ کے سپریم کورٹ کے سامنے جو سب سے اہم ترین کیس چلا میرے خیال میں پورے سال کا، وہ یہی کیس چلا کہ جناب یہ جو 80 سیٹیں تھیں یہ انڈیپینڈنٹس تھے یا یہ پی ٹی آئی ایک پارٹی تھی، اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی پارٹی سے متاثر ہو کے، ان سے منشور سے متاثر ہو کے ان لوگوں کو ووٹ ڈالا، اس الیکٹوریٹ کے ووٹ کی کیا قدر ہے اور ان کے نمائندے کو کیا کس حیثیت میں تصور کیا جائے، تسلیم کیا جائے۔ تو میرے خیال میں تو یہاں پر تو ہم اس وقت ایک ایسے کرائسس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت جوڈیشری کا چناؤ تو دور کی بات ہے، اس وقت تو سب سے بڑا سوال اٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ اور جو ہمارے نمائندے ہیں ان کے چناؤ پہ، کہ کیا ان کا جو چناؤ ہوا ہے وہ فری اینڈ فیئر، صحیح مہذب طریقے سے ہوا ہے، یا وہ میرے نمائندے نہیں ہیں۔ تو ایک ایسے ملک کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ میرے نمائندے گان کے اوپر جب سوال اٹھا ہوا ہے، تو میں ایسے نمائندے گان کے اوپر آنکھیں بند کر کے کیسے ان کو یہ پورا حق دے دوں کہ بھائی میرے قاضی کو بھی چناؤ تم کر لو، جن کے اوپر خود اس وقت یہ سوال ہے کہ جی آپ بھی شاید جو ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ تو یو سی دس جو دیر از نو ایزی وے آؤٹ، دیر از نو ایزی سولوشن۔ اور میں پھر جو اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ کڑی میں جوڑنے کے لیے، کہ جہاں میں کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ ایل انٹینشن ہے، وہاں ایل انٹینشن سب سے بظاہر اسی لیے دکھتی ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے وہ انڈر سکروٹنی رہی ہے سپریم کورٹ سے۔ آپ کی میجورٹی سپریم کورٹ اس وقت یہ کہہ رہی ہے، اس بات پہ ایک بات پہ تو سارے قائم ہیں، متفق ہیں، کہ اس جو آپ کی پارلیمنٹ کی کمپوزیشن ہے وہ اس وقت غلط ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کی جو موجودہ پارلیمنٹ کی کمپوزیشن ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ فلا ضرور ہے۔ یہ آپ کا سپریم کورٹ سوائے 2 ججز کے، امین الدین خان صاحب کے اور جو ہے نعیم اختر اڈوان صاحب کے، ان کا کچھ ڈسینٹنگ نوٹ اور طرف ہے، لیکن ویسے آپ کی سپریم کورٹ کی جو اکثریت ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ پارلیمنٹ از فلاڈ، دیر از اے فلا ان دا کرنٹ پارلیمنٹ۔ تو میرے خیال میں ایسی پارلیمنٹ یہ جو قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کی بائنڈنگ ایفیکٹ آف اٹس ججمنٹ کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، اس سے ایویڈ کرنا چاہ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک واحد انٹینشن دکھتی ہے کہ یہ جو 12 جولائی کا جو فیصلہ آیا ہے میجورٹی کورٹ کا، اس سے یہ ایویڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایل انٹینشن ہے، دیٹ از دیئر سول انٹینشن، دیٹ از دیئر الٹیریئر موٹیو which they seek to achieve through this constitutional amendment۔ ڈیوٹی صاحب اس میں کوئی سنسیٹ کلوز ہے؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا سنسیٹ کلوز یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کی اینڈ ڈیٹ ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہے، تو کوئی سنسیٹ کلوز ہے کہ اس حکومت کے اینڈ تک یا کبھی؟ کیونکہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، جو ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو کل کوئی اور حکومت میں آئے گا اور ان کے خلاف استعمال ہوگا۔ جی ایگزیکٹلی، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسا کوئی سنسیٹ کلوز ہے، آئینی ترمیم کا ایک جو بڑا ایشو یہ ہے کہ انٹل اینڈ انلیس کے یا تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے بائی دا سپریم کورٹ، یا اگلی کوئی جو آئے نیکسٹ بیچ آف حکمران اور وہ یہ پائیں کہ اس آئین کے اندر مزید ترمیم کی ضرورت ہے اور بائی وے آف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کو چینج کیا جائے، تو میرے خیال میں جو اس دفعہ اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی تو پھر اس کو ہٹانے کا کوئی دوسرا طریقہ رہے گا نہیں۔ اور اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کچھ جو لیگل اسکالرز ہیں، وہ لیگل فرٹرنیٹی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ پاس ہو گئی تو کیونکہ یہ ان ایفیکٹ آ جائے گی، اور ان ایفیکٹ سے ڈیم یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو بالکل ریڈنڈنٹ ہو جائے گی، جیسا یہ اس کو ریڈنڈنٹ بنا رہی ہے ترمیم، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ اس کے خلاف مزید چیلنج انٹرٹین نہیں کر سکے۔
اور ایک وہ راستہ ہی کلوز ہو جائے گا کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے، کیونکہ اس آئینی ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ آئینی ترمیم کو مزید کسی بھی کورٹ میں انکلوڈنگ دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک فائنل ٹھپا لگا دیا جائے گا کہ بس جی یہاں پر یہ چیز فائنل ہو گئی اور اس کو مزید گنجائش چیلنج کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وچ از ویری اسکیری ایز ویل. کہ لیکن آن دی ادر اینڈ کہ ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے لیگل فریٹرنیٹی کے بیچ میں، کہ اگر کل کو یہ پارلیمنٹ ایسی غیر آئینی ترمیم لے آتی ہے، یہ غیر آئینی ترمیم ہے، تو اس غیر آئینی ترمیم کو موجودہ سپریم کورٹ کے سامنے وائڈ تصور کرتے ہوئے چیلنج ضرور کیا جا سکتا ہے. اور اگر یہ سپریم کورٹ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں دیتی اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے تو وتھ ریٹروسپیکٹو افیکٹ یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. لیکن اس میں بھی دیکھیں بڑا ایشوز ہیں، اور اس میں کافی اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے، اکثریت بلکہ یہ کہتے ہیں کہ if this comes to pass تو جو موجودہ سپریم کورٹ ہے it will no longer have the power to entertain any challenge against this constitutional amendment. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سمیت اور 6 یا 7 لوگ جو ہیں انہوں نے آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن فائل کی کہ اس بل کو ہی، اس امینڈمنٹ بل کو ہی آپ ابھی سٹے کر دیں. اور وہ ریٹرن کر دیا رجسٹرار نے، سپریم کورٹ رجسٹرار نے ریٹرن کر دیا اس پہ کچھ آبجیکشنز لگا کے. بٹ یہ لیگل فریٹرنیٹی کی طرف سے کوشش کی گئی کہ اس کو ایٹ دس سٹیج بیفور اٹ از پاس اس کو روکا جائے کورٹس کی طرف سے. اور آپ کے خیال میں یہ پاس کیوں نہیں ہو پا رہا اب تک؟ دیکھیں اس کے پیچھے تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، جو دکھتا ہے کہ وہ فضل الرحمان صاحب وہی ایک آخری جو ہے وہ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. جو یا اب وہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ان کو اپنی طرف کھینچ کے رکھیں، کیونکہ پی ٹی آئی والے ہی اس وقت اس آئینی ترمیم کے خلاف ایک آپ کے پولیٹیکل سٹرکچر میں اٹ از دی اونلی سول پارٹی جو اس کی مخالفت کر رہی ہے. باقی جتنی میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر پارٹیز ہیں وہ اس کے حق میں ظاہر ہوتے ہیں، اور بیچ میں ان کو جو ہے صرف ایک اپنے کورم پورا کرنے کے لیے دے نیڈ کہ جے یو آئی ایف ان کے ساتھ آ جائے. تو اس وقت تو اگر آپ مجھ سے سیاسی سوال پوچھیں گے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ جے یو آئی ایف پہ گوٹ پھنسی ہوئی ہے. لیٹ اس سی کب تک پھنسی رہتی ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس اور سے پہلے امید یہ ہے، دعا یہ ہے کہ باقی جو لوگ اس وقت اس آئینی ترمیم کے حق میں ہیں اور اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ذرا اس کو ریکنسیڈر کریں اور اپنا گریبان بھی جھانکیں، اور ذرا ایک فار سائٹڈ جو آپ نے کہا کہ یہ صرف ایک لمیٹڈ اس کی بات نہیں ہے، اس کے تو ایک لانگ کانسیکوینسز بھی ہوں گے جو شاید اگلے بیچ آف حکومت آئے اس کے بارے میں. لیکن میرا اس پہ یہ ہے تصور کہ یہ لائی اس لیے جا رہی ہے کہ دے وانٹ ٹو ریمین ان پاور، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایور گو. اور اس وقت جو ان کے جو بھی پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو ونس اینڈ فار آل ان کی گنجائش ہی ختم کرنے کے لیے یہ آئینی ترمیم کو لایا جا رہا ہے. اور فضل الرحمان صاحب تو ہمیشہ ہی از نون ٹو بی ان پاور یا ہی لوز پاور، تو آؤٹ آف ایوری بڈی فضل الرحمان صاحب کیوں؟ دیر از نو ایزی وے. اب دیکھیں اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا کہ فضل الرحمان صاحب کا ایگزیکٹلی اس وقت کیا انسینٹیو ہے. وہ کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہیں پھر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، بٹ کون نہیں ہوتا سب کا ہی یہاں پر یہ گیم ہے. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے، اس ملک کا سیاست کا مسئلہ یہی ہے، اور جو ایک سیاسی بحران ہے اور سیاست جو ہم اس کو بڑا، اور یہ اٹ از ناٹ سو سمپل، لیکن اگر ایک کامن مین اس کو وہ کرتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کی، کوانٹیفائی کرنے کی کہ گندی سیاست اچھی سیاست، میرے خیال میں جتنی سیاست ہے نا وہ ہے یہ کہ ہمارا کسی کا بھی پرنسپلڈ سٹانس نہیں ہے. ہم سارے مفاد کے پیچھے، کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے کرسی کے پیچھے بھاگنا کہ جی ہم اقتدار میں آئیں، یہ ایک کوئی بری بات نہیں ہے. سیاست کی اس لیے جاتی ہے کہ جو ہمارا نظریہ ہے ہمیں موقع ملے کہ ہم اس کو لا کر امپلیمنٹ کریں. لیکن امپلیمنٹ کس طریقے سے کیا جائے، جمہوری نظام کے تحت کیا جائے یا میں کسی اور انڈر ہینڈ شیڈی طریقے سے، بس پاور میرے پاس آنی چاہیے، اس پاور کے لیے میں اصول بھی بیچ دوں، میں آئین بھی سرنڈر کر دوں، میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی سرنڈر کر دوں، میں عوام کے آئینی بنیادی حقوق بھی سرنڈر کر دوں. یہ طریقہ صحیح نہیں. کیا یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ نظر یہ آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کا صرف کندھا استعمال کر رہی ہے، اصل معاملات وہی کر رہے ہیں؟
देखें, वो एक तो बिल्कुल बज़ाहिर जहां पर आपकी हुकूमत के अरकान, इंक्लूडिंग द लॉ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग ऑल दोज ब्रिलियंट लीगल माइंड्स जो इस वक्त आपकी लॉ मिनिस्ट्री से लेके आपके अटॉर्नी जनरल तक सारे, वो सब ये कह रहे हैं कि जी हमें दिया जा रहा है ड्राफ्ट, देयर वर्डिंग्स आर कि हमने बनाया नहीं है, हमें दिया जा रहा है, हमें अभी इस रात के स्पेयर मिल रहा है। हु इज ड्राफ्टिंग? जो इस वक्त आपके पार्लियामेंट के जो पार्लिमानी सतह के ऊपर जितने आपके स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, नोबडी इज प्रिवी कि ये क्या अमेंडमेंट है, ये क्या तरमीम लाई जा रही है, क्या क्लॉज लिखा जा रहा है, क्या शेक लिखी जा रही है, कुछ आ भी रही है, नहीं आ रही है, क्या मामला हो रहे हैं। जिन्होंने कानून साजी करनी है जब वो एतराफ कर रहे हैं कि ये हम नहीं कर रहे, हमें करके दी जा रही है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई ऐसी कोई ताकतें हैं, कोई खलाई मखलूक हैं जो कि हमारे पार्लियामेंट से भी सुप्रीम हैं और हमारी पार्लियामेंट को लाकर चीजें देते हैं। पार्लियामेंट कानून साजी करती हुई दिख नहीं रही, उनको कानून बनाकर लाकर दिए जा रहे हैं कि जी जनाब आपने बस पास करना। तो इसमें तो जो आपका सवाल है, आई बिलीव के उसका आंसर इट इज वेरी क्लियर कि क्या चल रहे हैं मामला। अगर यही सिचुएशन है और अगर हमें ये नजर आता है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इसके बाद दे वुड गेट ऑड्स और गवर्नमेंट से मुराद इसमें एस्टैब्लिशमेंट को शामिल कर लीजिए, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? We are in a constitutional crisis. We are not heading towards a constitutional crisis. We are in a constitutional crisis. एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्तलिफ तरीकों से वार करने की कोशिश की जा रही हो, एक ऑर्गन ऑफ द स्टेट दूसरे ऑर्गन ऑफ द स्टेट के साथ लड़ रहा हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट का तो काम है कि मिलकर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के वो जो है ना, एक जिसको कहते हैं कि व्हाट द करेक्ट वर्ड इज, मेरे जहन में उस वक्त भी सोच रहा था कि वो इसको कॉम्प्लीमेंट्री, यस, द रोल इज टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। पार्लियामेंट का काम है टू कॉम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का काम है टू कॉम्प्लीमेंट द पार्लियामेंट, और दोनों ने मिलकर एग्जीक्यूटिव को इन चेक रखना है। और सबकी अपनी अपनी डोमेन है, अपनी डोमेन को तजावुज किसी ने नहीं करना, लेकिन अपनी डोमेन में काम करते हुए एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सतह के ऊपर इस मुल्क को, इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है अवाम की बेहतरी के लिए, एक जमहूरी निज़ाम की बेहतरी के लिए। वो नहीं हो रहा। So we are in a constitutional crisis where the organs of the state are infighting, they are fighting amongst themselves, जहां पर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से तो लड़ ही रहा है, लेकिन ऑर्गन इटसेल्फ भी डिवाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ भी डिवाइडेड है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मैं एक्सटर्नल वार की बात करता हूं तो देखें, एक तो इस आईनी तरमीम के तहत वार किया गया ही गया, वो नाकाम रहा। दूसरा वार ये किया गया कि जब जो अब आपकी एक डिटेल जजमेंट आ गई है, पार्लियामेंट में बैठ के स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली आवाम को उकसा रहा है, इलेक्शन कमीशन को उकसा रहा है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आपने नहीं मानना, आपने उसको वायलेट करना है, और आपने ये जो रिजर्व सीट्स वाली जजमेंट है उकसाया जा रहा है पार्लियामेंट की फ्लोर पे से, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट ये उकसा रहा है कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वायलेट करना है। तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के खिलाफ इतना ज्यादा जंग पे उतर आया है कि अवामुल नास को, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उकसाया जा रहा है कि नहीं जी आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देना है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आपने नहीं मानना। तीसरी बात कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट पे वार किया गया कि जो ही एक यही पार्लियामेंट एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेकर आई, जब देखा कि हमारी आईनी तरमीम के अंदर शायद सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस को कंट्रोल करने की और उसके बेंचेस को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के फैसले शायद जो है करवाने की अब हमारी ये ड्रीम पूरी नहीं हुई, तो हम मजीद ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ही अमेंड कर देते हैं, और उसको ऐसा अमेंड करते हैं कि जिस वजह से, जिस इंटेंट से उसको लाया गया था उसको ही रिडंडेंट बना देते हैं। कि अब जैसे ही जिस दिन ऑर्डिनेंस आई उसके चंद घंटे बाद, जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब उसको साइन करते हैं और चंद घंटे बाद हम देखते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन काजी फायद ईसा साहब जारी कर देते हैं, और मुनीब अख्तर साहब जो बज़ाहिर उनसे बहुत सारी चीज़ों पर डिसेंट करते हैं, उनका एक लीगल स्कूल ऑफ थॉट, उनकी जूरिस्प्रूडेंस का उनकी जो जहन है वो थोड़ा मुख्तलिफ है उनसे, और वो उनके साथ कई जगह कई बेंचेस के ऊपर एग्री करते हुए नहीं जाहिर होते,
तो उनको उठा के उन्होंने उस कमेटी से ही बरतरफ किया, और एक जो लाइक माइंडेड जज जाहिर होते हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उनको अपने साथ उस बेंच पे ले आए। और आज ही हमने देखा कि बल्कि शायद कल, सॉरी गुज़िश्ता कल के अंदर जो एक दूसरे रुकन थे जो सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने भी सवाल उठा लिया कि ये जो ऑर्डिनेंस है यही बज़ाहिर इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अभी तो इसकी वायरीज, इसकी वैलिडिटी जब तक फुल कोर्ट बैठ के उसको रिव्यू नहीं कर लेती, उसको सेट नहीं कर लेती, तब तक आपने इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे शुरू कर दी। और उन्होंने भी बड़ा वाजे कह दिया है कि ये मैं जो 3 रुकनी कमेटी थी इसका मैं हिस्सा हूं, लेकिन मैं इसका लाताल्लुकी का इजहार करता हूं ऐसी कमेटी का जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत आपने फॉर्म की है, जिसमें मुनीब अख्तर साहब को आपने बरतरफ कर दिया है। तो उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि मैं ऐसी कमेटी में नहीं बैठूंगा, और फुल कोर्ट बुलाया जाए और फुल कोर्ट इसको देखेगी। और फिर तीसरी चीज कि हमने ये भी देखा कि जहां पर ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पार्लियामेंट की तरफ से तो वार किया जा ही जा रहा है, क्या एग्जेक्टिव की तरफ से वार, एक जिसको मैं कहूंगा कि अगर डायरेक्टली नहीं किया गया तो वो वार होने की गुंजाइश जरूर दी गई, एंड द एग्जेक्टिव फेल्ड टू अपहोल्ड द सैंक्टिटी, टू सिक्योर द सैंक्टिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब मुबारक सानी केस से पहले एक हजूम, एक जत्था पूरा ऐसे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके आग लगा देंगे, जजेस को मार देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के गेट तक पहुंच गए। ये कैसे पहुंच गए थे? वेयर वॉज द इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस, वेयर वॉज द इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर वर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, वेयर वर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ये तो उनका काम था कि एक वो ऑर्गन ऑफ द स्टेट होते हुए उनकी जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट दूसरे ऑर्गन ऑफ द स्टेट को वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करें। लेकिन उनकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स के आए दिन जो है कोई मौलवी खड़े होके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर के ऊपर बाउंटी देना शुरू कर दे, और उस पार्टी के खिलाफ, उनके लीडरान के खिलाफ कोई एक्शन मुस्बत होता ना दिखे, बल्कि उनको इतनी खुली छूट दी जाए कि नाउ दीज एलिमेंट्स कैन, मेरे ख्याल में जहां हम ये कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी गलतियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट कभी कुछ ऐसे फैसले दे देती है जो कि हमें लगता है कि जी शायद किसी एक्सटर्नल फैक्टर के वो जो है ना शायद प्रेशराइज हैं, या क्या है बात जिसके वो मातहत होके कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल में एक जज की जो होना तो नहीं चाहिए, इस पे मल्टीपल जजमेंट्स हैं कि जजेस शुड नॉट बी परसुएडेड और डिसुएडेड बाय व्हाट गोज अराउंड इन मीडिया, व्हाट गोज अराउंड इन पब्लिक, और पब्लिक परसेप्शन क्या है, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। बट अगेन दे आर ह्यूमन बीइंग्स, और एक ह्यूमन बीइंग को ये पता चले कि जी मेरी गर्दन के ऊपर जो है बाउंटी दी जा रही है और मेरे खिलाफ सरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, वो क्या खतरे में नहीं आएगा? क्या वो प्रेजुडिस नहीं होगा? क्या उसको अपनी जान की खातिर अपने फैसले को सेकंड रिव्यू करने के ऊपर मजबूर नहीं होगा? These are all factors which perhaps the parliament needs to address on a higher level and foremost, rather than attacking the judiciary itself. ल्यूसर चंद आखिरी सवाल, अगर हम इसको इस जाविये नजर से देखें कि जब से काजी फाजीसा साहब चीफ जस्टिस बने तो ही वाज बिहेविंग राइट, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। हम सब ने देखा कि किस तरह उनका किबला ही अचानक तब्दील हो गया। हुकूमत तो है ही उनकी बहरहाल। तो अगर आप इसको सियासी नजर से देखें और कानूनी नजर से भी, तो ये तमाम चीजें तो वो वैसे भी कर लेते, इतना गंद करने की जरूरत क्या थी? देखिए, आई विल बहुत मिन्स माय वर्ड्स एंड आई विल वेरी केयरफुली कमेंट के मैं एक जज के माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या उनकी पीछे रीजंस हैं फॉर द वे दैट ही इज सीन टू बी बिहेविंग। तो और क्योंकि देखें जज का कैरेक्टर, जज का जो जहन है वो एज जूरिस्प्रूडेंस स्टैंड्स के वो निछावर होना चाहिए, वो दिखना चाहिए बाय द वे दैट ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ इन कोर्ट एंड थ्रू हिज जजमेंट्स, उसकी किसी तकरीरों के थ्रू और किसी दूसरे तीसरे मामला के थ्रू नहीं। काजी फायज ईसा साहब, ये वही काजी फायज ईसा साहब हैं जब ये वकील थे तो 2007 के अंदर जब मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर यहाँ पर जो मई का वाकया हुआ था, जब इफ्तिकार चौधरी साहब के ऊपर उनको रोका गया और वकला पे अटैक किया गया और कराची के अंदर, तो मैं अभी हाल में ही जजमेंट पढ़ रहा था जिसके अंदर वो सारा री रीडिंग इट किस तरीके से काजी फाइज ईसा साहब थे जो एक उस वक्त लॉयर्स मूवमेंट के करता धरता थे और उन्होंने एज अमाइकस
of being appointed by the then Sindh High Court. उन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे थे और वो एक बज़ाहिर आइन की बालादस्ती को मानने वाले, आइन की खातिर कुर्बानियां देने वाले और एक वेरी ब्राइट लीगल माइंड हमेशा से जाहिर होते रहे हैं. He was then appointed as a judge in the Balochistan High Court, चीफ जस्टिस और फिर सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने से पहले हमने उनकी बहुत अच्छी अच्छी जजमेंट्स देखी हैं, जहाँ पे जो आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया एस्टैब्लिशमेंट, तो ही हैज वेरी ओपनली कॉल्ड आउट द एस्टैब्लिशमेंट एज वेल. फैजाबाद धरने वाली जो जजमेंट उसकी है, जिसपे उन्होंने बहुत दफा ये भी इजहार किया कि जी मैंने ये इतनी पैरामाउंट जजमेंट दी थी जिससे स्क्रूटनी हो रही थी उन ताकतों की, उन अनासिर की, जिसकी वजह से एक आम आवाम भी अगर आप किसी से लें तो वो उन्हीं की तरफ पॉइंट आउट करेगी कि जी असल मसला तो ये है, असल मसला तो ना पार्लियामेंट या ना जुडिशरी है, असल मसला तो ये है जो कि ना पार्लियामेंट को काम होने देते हैं ना जुडिशरी को काम करने देते हैं, जिनके ऊपर जो है आपके 6 जजेस ने ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सवाल अब उठाया. तो ये काजी फैज ईसा साहब ही थे जिन्होंने बड़ी एक दलेरी वाली जजमेंट फैजाबाद धरने वाली जजमेंट दी. ये एक मुझे याद पड़ता है एक केस के अंदर ही वाज इवन जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, तो एज अ कमीशन उसमें हेड ही वाज हेडिंग द कमीशन, तो उसके अंदर भी इन्होंने काफी उसके ऊपर आगे दी हुई है चीजें कि एक्सट्रीमिज्म इस मुल्क में कैसे खत्म की जाए और ये सारे मामला को कैसे रोकथाम किया जाए. लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो ऑन द बेंच आकर काजी फैज ईसा साहब का जो कुछ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक कंडक्ट, और वो कंडक्ट मैं मजीद और किसी बात पे नहीं करूँगा, मैं कंडक्ट सिर्फ इस पे बात पे ज़रूर कमेंट करूँगा कि एक ऐसी ऑर्डिनेंस जो कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इन हेस्टी मैनर पास की, और उस हेस्टी मैनर के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 199 के अंदर आज तक भी गुंजाइश है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल्स रिव्यू करे और ये जो ऑर्डिनेंस और ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसकी भी कुछ चीज़ों को वो रिडंडेंट बना सकते हैं. इसकी अगर कोई ऐसी कोई गलत शिक है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग्स के अंदर मजीद बेहतरी नहीं आ रही बल्कि ज़्यादा उनकी अमल दरामद के अंदर और वो एक इंटरनल वर्किंग्स के अंदर और हिचकिचाहट और हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो उसको ख़त्म कर सकते हैं अपने रूल्स अमेंड करके. जो 1980 के जो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं इंटरनल वर्किंग के, वो उसको कर सकते हैं अमेंड. लेकिन एक ऐसा ऑर्डिनेंस जो कि खुद मुतनज़ा है, जो कि एक खुद इस वक्त डिस्प्यूटेड है, जिस पे 10 सवाल उठ रहे हैं, जो कि एक ऐसी पार्लियामेंट का सदर पास कर रहा है जो पार्लियामेंट के ऊपर अभी यही सुप्रीम कोर्ट जिसकी फुल कोर्ट बेंच की सरबराही कर रहे थे काजी फैज ईसा साहब, उन्होंने एक सवाल उठा के और इस पार्लियामेंट की इसको फ्लॉड करार दिया. तो ऐसी पार्लियामेंट की तरफ से, ऐसे प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसा एक मुतनज़ा एक ऑर्डिनेंस पास होकर आपने फौरी तौर के ऊपर इसे पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और इतनी तेजी से इम्प्लीमेंट किया, और आपने चुनकर एक अपने साथी जज को उठा के विदाउट अलॉटिंग एनी रीजन. देखें, एक ये मैं कानूनन बात करूंगा कि जनरल क्लॉजेज एक्ट है, उसका सेक्शन 24A है. जनरल क्लॉजेज एक्ट गालबन 1897 इफ आई रिमेंबर द करेक्ट ईयर. और तो उसके अंदर से उसका सेक्शन 24A है जो कि ये कहता है कि ऑल ऑर्डर्स पास बाय एनी अथॉरिटी, वो जजमेंट्स हो, ऑर्डर्स हो, कोई भी काम हो, वो एक वैलिड और लॉजिकल होना चाहिए और उस पर रीजंस असाइन होने चाहिए. ये जो ऑर्डिनेंस के तहत मुनीब अख्तर साहब को, ही इज द थर्ड इन लाइन सीनियर मोस्ट जज, आप उनके साथ इख्तलाफ जरूर करते हो, 100 करते हो, लेकिन इस तरीके से उनको उठा के साइड पे कर देना विदाउट अलॉटिंग एनी वैलिड और कोजेंट रीजंस, ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात है. मैं इस वक्त वो जो लोग बैठ के जगह जगह बाकी सियासी बातें करते हैं ना कि जी वो जज ने जी वो 8 मेंबर्स के साथ क्यों नहीं मुतफिक थे इसलिए काजी फैज ईसा साहब बुरे हैं. आई वोंट डू दैट सॉर्ट ऑफ कमेंट्री, क्योंकि एक जज की अपनी सवाबदीद है. अगर वो 8 जजेस के साथ अग्रीड नहीं थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले केस में, उनका इंडिपेंडेंट जुडिशरी का बात ही यही है कि एवरी जज इज इंडिपेंडेंट देमसेल्व्स आल्सो, कि ये नहीं है कि अगर 8 जजेस एक चीज पे मुतफिक हैं तो बाकी जजेस हैं वो भी लाजमी उसी चीज के ऊपर मुतफिक होंगे.
یہ چیز منصور علی شاہ صاحب نے اپنی ججمنٹ کے اندر یہ لکھا کہ وہ ججز، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اور ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ کا اور ایک باشعور اور ایک اچھی عدلیہ کا نوشن ہی یہی ہے کہ ججز جو ایک دوسرے سے ڈسینٹ بھی کر رہے ہوں وہ کم از کم اپنے آئیڈیاز آپس میں بیٹھ کے ڈسکس ضرور کریں. اس کے بعد آزادی رائے سب کی اپنی ہے کہ وہ کون سی ججمنٹ لکھتے ہیں، وہ کس بات پہ ڈسینٹ کرتے ہیں، وہ کس موقف اختیار کرتے ہیں. تو میں قاضی فائز عیسیٰ پہ کسی ایسی بات کے اوپر نہیں کمنٹ کروں گا، میں گریز کروں گا. اینڈ آئی اسٹل ہیو ہوپ کہ جو کچھ بہت تھوڑا عرصہ ان کا رہ گیا ہے، اور ہماری امید ہے کہ 26 تاریخ کو وداؤٹ اینی ایکسٹرنل فیکٹر انٹروڈنگ ان دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری منصور علی شاہ صاحب نیکسٹ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. اینڈ ویری گریسفلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ول ہینگ ہز روبس. یہ امید ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو کچھ چند دن رہ گئے ہیں، جو ان کے اوپر کچھ ڈاؤٹس کریٹ ہو رہی ہیں ان کے اس عمل سے جو انہوں نے منیب اختر صاحب کو سائڈ پہ کیا ہے، وہ شاید اس کو کریکٹ کر لیں. جانے سے پہلے فل کورٹ ریفرنس بلا لیں، فل کورٹ کی ایک میٹنگ بلا لیں، تو کچھ چیزیں شاید بہتر ہو جائیں. یوسف میرے پاس آپ کے لیے آخری 3 سوال ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ ججز کو باہر کے افیکٹ سے نہیں دیکھنا چاہیے، رائٹ؟ the judges should just speak what the constitution says. اس وقت جو سچویشن ہمارے ملک میں چل رہی ہے، جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا، مبارک ثانی کیس میں آپ ایک بہت بڑے اس کے کرٹک بھی رہے، آپ نے پھر اس کے حق میں بات بھی کی، تمام چیزیں. Do the authorities that be one establishment obviously سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، ڈو دے ریئلائز کہ ہمارے ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ بلوچستان میں ابھی ریسنٹلی ایک مسئلہ ہوا، آدھا ملک ہمارا جل رہا ہے، وہ احمدی کیس ہو، بلاسفیمی ہے، 15 دن میں ہم نے 2 لوگ مار دیے ہیں، 2 ابھی اور ایک ساہیوال میں لاہور میں احمدی مسجد دوبارہ جلا دی. وی آر آن اے برنک کہ ہم کل چوتھا 506 بندہ مار دیں، اور اس کے پیرلل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں جن کا کوئی لاجک بھی نہیں ہے. ڈو دیس پیپل ایون ریئلائز کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ اپنے چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کے ساتھ عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں، I very much hope so that those in power, whether it be the parliament or any other stakeholder who consider themselves to be in power, they need to wake up and they need to realize what is happening to this country, specifically in the context of religious extremism and in the context of people taking the law into their own hands when it comes to the case of blasphemy. دیکھیں، یہ ایک اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آگ اب پھیل چکی ہے، بھڑک تو بہت عرصے سے رہی ہے. اینڈ پیپل لائک یو، پیپل لائک می، ہم بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھڑک رہی ہے، یہ پھیلتی جا رہی ہے، اور ایسی اس ایکسٹینٹ تک پھیلتی جا رہی ہے کہ یہ ہر بندے کے گھر تک آئے گی. آئی وونٹ بی جو ہے نا، آئی وونٹ مینس مائی ورڈز ہیئر وین آئی سے دیٹ ایون اسپیکنگ آن دس ٹاپک رائٹ ناؤ there is a sense of fear in my mind and in any rational person's mind کہ یہ تو اب ایسا ملک بن گیا ہے کہ آپ بلاسفیمی لا کے اوپر اس کے جو بھی یوز یا مس یوز یا کوئی بھی جو یہ معاملہ ہے اس کے اوپر آپ بات بھی کریں تو کون اس کو کیسے انٹرپریٹ کر کے اور طیش میں آ کے اور آپ کے جو ہے نا وہ جانی دشمن بن جائے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہو چکا ہے کہ we have created an atmosphere جہاں پر ہم نے اتنا زیادہ یہ نوشن کریٹ کر دیا ہے کہ جس نے نہ صرف بلاسفیمی تو بہت دور کی بات ہے نا کہ کس نے کمٹ کی کس نے نہیں کمٹ کی، کون بلاسفیمر ہے یا کون بلاسفیمر نہیں ہے، جس پہ آپ نے الزام لگا دیا تو بس آپ کوئی دوسری گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا. ایز اف اٹ از اے ریس، ایز اف پیپل آر ناؤ ہنگری کہ ہمیں کوئی ملے جس کا ہم جو ہے نا سرتن سے جدا کریں تاکہ وہ ثواب ہم بھی کما سکیں. تو دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ایسی عوام کریٹ کر دی ہے کہ دیز پیپل آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ کہ بس ہمیں کوئی دکھا دو جس نے جو ہے نا بلاسفیمی کی ہو. اور جب ان کو ایسا کوئی بندہ دکھتا ہے جس پہ فقط ایک الزام لگتا ہے، ایسے جو ایک جس کو کہتے ہیں نا شدت پسند اور ایک اتنی زیادہ جو ریڈیکلائزڈ یہ عوام آہستہ آہستہ، اور اس کے کچھ سفیئرز آلریڈی ہو چکے ہیں، جو سفیئرز ہو چکے ہیں ان کو وہ جیسے بھوکے ہوتے ہیں کہ as soon as they are told کہ بھئی فلانے بندے دیکھیں جی this is your next target،
تو ان کو تو بھائی لاؤ جی آج جی ہمارا ثواب کا دن ہے, آج ہم نے جو ہے نا وہ جو چیز ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور ہم کوئی بہت اچھا کام جو ہم ویسے ہمیں کہیں موقع نہیں ملتا تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ آج جا کے اس کو جلاتے ہیں اور ہم ثواب کماتے ہیں. آپ نے وہ کنسپٹ ہی چینج کر دیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دین قتل و غارت سکھاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دین یہ کہتا ہے کہ جی آپ کسی کے اوپر الزام لگایا گیا کسی بھی اس, اور بالخصوص اسلام کے اندر بھی ایک جو ہے پورا ایک قاضی کا نظام, ایک جو ہے وہ جورس پروڈنس اور کیسے عدلیہ ہونی چاہیے ہے اور کیسے جو ہے ساری چیزوں کا ایویڈنس ہونا چاہیے ہے, اور اس کے بعد کسی کو کسی ملزم کو مجرم قرار دے کے پھر سزا دینی چاہیے ہے. یہ ایک پورا جورس پروڈنس سارے ابراہمک ریلیجنس میں بھی, دیگر مذاہب کلچرز کے اندر ہر جگہ ہے. انفارچونیٹلی اسلام کے نام پہ یہ ساری بات ڈسٹارٹ کر کے ایسی بنا دی گئی ہے اور اس کو ہوا دی جاتی ہے مزید ہمارے پارلیمانی سطح پہ. پارلیمنٹ کی ہم بات کریں نا تو پارلیمنٹ تو میرے خیال کے اندر جب ہم آزاد جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو مقبول باقر صاحب کے اوپر بھی بم دھماکہ ہوا تھا, اور مزید بھی جن ججز نے پہلے نیچے ٹرائل کورٹ سے کوئی بھی اگر کسی بلاسفیمی اکیوز کو بری کر دے ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ججز کے اوپر بھی اتنا پریشر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے عبد الشکور خان جیسے لوگ وہ جب بڑے واضح سینٹ کی فلور پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئٹہ کے اندر جس ایک آدمی کا قتل کر دیا گیا ایک پولیس آفیسر نے, وہ پولیس آفیسر کو سراہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور میں آپ کو اتنا انعام دوں گا اور میں آپ کو لیگل ٹیم بھی ساری مفت فراہم کروں گا. پھر آپ کے جو ہیں بچرا رند صاحبہ باپ پارٹی کی, وہ ایکس ایم پی اے رہی ہیں, لیجسلیٹر میں رہی ہیں, تو ایسے لوگ جب کھلے عام سراہ رہے ہوں, گلوریفائی کر رہے ہوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو, یا ابھی سندھ کے اندر ایم این اے پیر جیلانی صاحب, امیر علی جیلانی صاحب, انہوں نے جا کر اس پولیس پارٹی کو جنہوں نے ایک ایسے آدمی کو جو کہتا رہا کہ جناب یہ جو آئی ڈی ہے جس سے کچھ الیجڈ گستاخانہ مٹیریل ڈالا گیا ہے یہ میری آئی ڈی اب نہیں ہے, یہ اگر کسی ٹائم پہ شاید تھی تو اب میرا اس کے پاس ایکسس نہیں ہے, کسی نے اس کو ہیک کر لیا ہے, کوئی اس کو مس یوز کر رہا ہے. اس آدمی نے اپنی لوکیشن خود پولیس کو ڈسکلوز کی کہ اس نے اعتماد کیا, اس نے عدلیہ پہ, اس نے پولیس پہ, اس نے نظام پہ, اس نے پارلیمان پہ, اس نے اس پورے سسٹم پہ اعتماد کیا کہ جی شاید یہ مجھے ڈیو پروسیس اور میرے آئینی حقوق جو آرٹیکل 10A مجھے دیتا ہے وہ مجھے دیں گے, اور اس کے بعد میں اپنا موقف رکھنے کے بعد شاید باعزت بری ہوں گا کیونکہ میں نے کچھ کیا نہیں ہے. وہی پولیس پارٹی, وہی نظام اس کو اٹھا کے لے کر جاتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے, کیونکہ اس نظام کے جو نافذ کرنے والے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ اگر آپ اسلام کے نام پہ, دین کے نام پہ اگر آپ کسی بندے کی جان لے لیں تو جی آپ کو شاید آخرت میں بھی ثواب ملے گا, اور اس ملک میں تو آپ کو پھولوں کی پتیوں سے نوازا جائے گا, ہار پہنائے جائیں گے اور پیسے دیے جائیں گے. ایون ڈاکٹر شاہ نواز کے جب یہ کلنگ ہو رہی تھی, جو ساری چیزیں اس سے پہلے جب اس کو پکڑا گیا تھا تو وہاں پر ایک جو مولوی ہیں وہ پریس کلب پہ کھڑے ہو کے, عمر کوٹ کے پریس کلب پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ میں 50 لاکھ انعام دوں گا کہ جو بھی جا کر اس بندے کو پکڑ کے مارے گا اور اس طریقے سے کرے گا. تو ہم نے ایک سوسائٹی ایسی کریٹ کر دی ہے, اور جو آپ نے کہا کہ یہ آگ بڑھتی جا رہی ہے, یہ آگ بڑھ چکی ہے اور یہ ہر بندے کے گھر تک پہنچ گئی ہے. یہ جو اب طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, مولانا طارق مسعود صاحب کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے, کسی صاحب نے طارق مسعود صاحب کی وہ کلپ بھی دوبارہ ڈالی کہ یہی طارق مسعود صاحب تھے جو ایک ٹائم پہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی جس کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگ گیا عدالتوں کو چھوڑ دو, عدالتوں کے اوپر کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی عدالتوں کے اوپر ہمیں جو ہے اعتماد نہیں ہے. اور لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا اور یہ بڑی فخر سے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور لوگوں کو جلائے گرائے مارے, اور جب اپنے پہ آئی ہے تو آج یہ بھی اسی آرٹیکل 10A کی طرف آنکھیں کر رہے ہیں, یہ آج اسی سسٹم کی طرف آنکھیں کر رہے ہیں جس کو بگاڑا انہوں نے, اور اب امید کر رہے ہیں کہ جی مجھے بھی کوئی گولی نہ مار دے, میری جان بھی بچ جائے اور مجھے بھی ڈیو پروسیس کا موقع دیا جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے توہین ہو بھی گئی ہے تو میں اس کو کلیریفائی کروں, اس سے معافی مانگوں, کچھ کروں, اور اگر نہیں ہوئی, مجھے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے تو مجھے کوئی آ کے ایک گولی نہ مار دے, مجھے اپنا دفاع کرنے کا تو موقع دیا جائے.
लियो सर बट जस्ट वो अनफॉर्चुनेटली जो जी सिर्फ तारीख को जी जी करेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मुफ्ती साहब ने वो बात कही थी, उसके बाद वो वीडियो में उससे रुजू कर चुके हैं और उसके बाद जितने भी केसेस हुए हैं उन्होंने उसको कंडेम किया है, तो तारीख को सिर्फ दुरुस्त रखने के लिए। दो आखिरी सवाल जस्ट टू बी शॉर्ट, लॉयर्स मूवमेंट का कोई खतरा तो नहीं, लेकिन कोई कोई मामला देखते हैं कि लॉयर्स मूवमेंट खड़ी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए? देखिए, लॉयर्स मूवमेंट का खतरा उन अनासिर को हो जो कि नहीं चाहते कि इस मुल्क में कानून नाफिज हो, और लॉयर्स मूवमेंट की उम्मीद ज़रूर हर इंसान को होनी चाहिए है, मुझे भी है, और हर एक शहरी को होनी चाहिए है कि जहाँ पर आइन पे वार किया जाएगा, जहाँ पर एक आज़ाद अदलिया पे वार किया जाएगा, जहाँ पर एक इस निज़ाम पे, जहाँ पर एक इस कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइनी निज़ाम पे वार करने की कोशिश की जाएगी और इंसानी बुनियादी हकूक़ को पामाल करने की कोशिश की जाएगी इस मुल्क में, वहाँ पर ज़रूर वकला खड़े होंगे एज अ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एज द कस्टोडियंस, एज द वॉरियर्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। लॉयर्स मूवमेंट ज़रूर हो। आपको लग रहा है होगी, लाइक प्रैक्टिकली आपको लगता है कुछ शुरू हो सकता है? अगर अगर वार होगा तो फिर नेचुरली उस वार की खिलाफ दिफा करने के लिए आइन का और अदलिया का जरूर होगा। ड्यूक साहब आखिरी सवाल, चे गेवेरा ने कहा था, आप उससे बेहतर वाकिफ होंगे, कि ये इतनी बड़ी आइन की किताब लिखने की जरूरत क्या है, इसके अंदर लिखो जिसकी ताकत है बस उसी का कानून है। अगर हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देखें, जैसे आपने भी फरमाया वो मुबारक सानी केस पे हमने बात की, कि जब उनके ऊपर मॉब आ गया तो वो सॉरी सॉरी करके पीछे हट गए, पार्लियामेंट का भी ये हाल है। तो ओवरऑल इसको हम, आर वी लुकिंग इट फ्रॉम द राइट लेंस कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं या हमें पावर डायनामिक्स और पावर स्ट्रक्चर्स की बात करनी चाहिए? देखें, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कभी भी पामाल होता है तो वो पावर स्ट्रक्चर्स का ही गेम है। जो मैं बात शुरू से कर रहा हूँ वो बात यही है कि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमल दरामद करना, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती, इट हैज ऑल गॉट टू डू विद दोज इन पावर। वो ये उनका उनकी ऊपर है कि क्या वो इस आइन को रद्दी की तरह उठा के साइड पे फेंक देंगे और इसको रौन देंगे, या इसकी सैंक्टिटी को समझ के और इस बात को समझ के कि ये आइन जितना मुझे एक आम शहरी के लिए ही जरूरी है उतना ही उनके लिए भी जरूरी है। और ये जो आग वो इंतहा पसंदी की आग हो या वो किसी ऑर्गन ऑफ द स्टेट में एक्सटर्नल पावर्स की इंटरफियरेंस की बात हो, किसी भी किस्म की आइन की, किसी भी इंटेंट की, आइन के बुनियादी हकूक की, आइन के स्ट्रक्चर की पामाली की जहां बात की जा रही है, वहां पर पावर गेमी है, पावर स्ट्रक्चर्स की गेमी है। और वो लोग जो कि पावर हंगरी हैं, जो कि चाहते हैं कि आइन की चार दीवारी को हम तहस नहस करें और हम डिक्टेटर्स बनकर रहें, वो तो चाहेंगे कि ये आइन की जो है ना, वो आइन को एक रद्दी की तरह उठा के साइड पे फेंका जाए और इसको रौंदा जाए। लेकिन जो कि चाहते हैं कि सही मायनों के अंदर ये मुल्क सरवाइव करे, जो कि चाहते हैं कि इस आवाम को हमने सर्व करना है, जो कि चाहते हैं कि उस मुल्क का निज़ाम बेहतर बने, ना कि मजीद पामाली की तरफ जाए और ज़्यादा जो है इस मुल्क के अंदर। आप इकोनॉमी से बात शुरू हुई थी, मैं इकोनॉमी पे भी करता हूँ कि जो हमारी माशी इस वक्त सूरत हाल है कि मजीद और चीज़ें बर्बाद हों और एक कॉमन मैन के लिए ऑलरेडी जितनी घुटन है मजीद घुटन हो, उसके लिए जितने पावर्स में बैठे हुए हैं उनको सोचने की जरूरत है कि एक ना एक दिन उन्होंने भी खुदा को जवाब देना है। और उससे पहले कहीं ना कहीं ये मेरा ईमान का हिस्सा है कि उन्होंने आवाम को भी जवाब देना होगा, इस मुल्क में भी देना होगा। ल्यूक साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देखते हुए और पाकिस्तान में उसके इर्द गिर्द पावर स्ट्रक्चर को देखते हुए मेरे पास आपके लिए यही सवाल थे। क्लोज करते हुए, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज इस स्पेसिफिक चीज के मुतालिक मैं नहीं पूछ सका तो प्लीज फरमाइए, फिर हम इसे क्लोज करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में हमने बड़े तफसीली तरीके से फॉर द ले मैन खास तौर से, एंड आई अप्रिशिएट के हमेशा आपकी पॉडकास्ट के अंदर टाइम की कभी कमी नहीं होती और आप एक चीज़ को बड़े एक्सपेंसिव तरीके से इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि जो आपके लिसनर्स हैं वो उसकी नौयत को, उसकी गहराई को समझ सकें। और वो जिस हम दलदल में फंस चुके हैं, जो आपने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगी, और मैंने उसका जवाब दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त है। इस चीज को आम आवाम को भी समझने की जरूरत है, मजीद शऊर आवाम में आए। मेरे ख्याल में ये आपकी पॉडकास्ट को मैं सराहता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ
کہ آپ کی پوڈ کاسٹ کے تھرو شاید جو لسنرز ہیں ان میں مزید اویئرنیس پھیلے. اینڈ ان دی اینڈ آئی ول جسٹ ریٹریٹ دس اگین کہ یہ میسج صرف عام عوام کے لیے تو چلے ہیں کہ شاید ان کے لیے تو اس لیے ہے کہ اگلی دفعہ انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے ذرا اور مزید سوچ کے اور پرنسپلز کے اوپر ووٹ ڈالیں, نہ کہ جو امیجیٹ تقاریر ہو رہی ہیں اس سے متاثر ہو کے, اور جو ایک امیجیٹ جو ہے نا کنٹیکسٹ کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ایک وہ نیریٹو بنا دیتی ہیں, ہم ان سے متاثر ہو کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے. لیکن ذرا ہم تاریخ کو بھی دیکھیں کہ کس کا کیا کردار رہا ہے, کیا کون سیٹ پہ بیٹھ کے کیا کام کرتا ہے, تب پرنسپل سٹینڈ کے اوپر ہم ووٹ ڈالنا سیکھیں. اور جو پاور سٹرکچرز میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ووٹ کے ذریعے سے آئیں, وہ ووٹ کو عزت دیں, وہ الیکٹوریٹ کو عزت دیں. وہ اگر وہ الیکٹوریٹ کو عزت نہیں دیں گے تو ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے. وہ 100 دفعہ مینجمنٹ کر کے الیکٹوریٹ کو تہس نہس کر کے الیکٹوریٹ کو کچھ نہ جان کر پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ بھی جائیں گے, ان کو نہ کبھی وہ عزت ملے گی اور نہ ہی کبھی جو ہے وہ اس اب خود تو کتنے دن جی لیں گے, کتنی عیاشی کر لیں گے, اس ملک کو وہ برباد کریں گے. اور مزید اگر یہ ملک برباد ہوگا تو میں نے جیسے پہلے کہا یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ جس نے غلط کیا ہے وہ ضیاء نے کیا ہو یا مشرف نے کیا ہو, ان کو کہیں نہ کہیں یہ عوام بھی اور یہ جو نظام ہے وہ ایز جتنا بھی فلاڈ ہو, جتنی بھی اس میں بہتری کی گنجائش ہو, لیکن یہ نظام یہ عوام ایسے لوگوں کو کہیں نہ کہیں رد ضرور کرتی ہے اور ان کو اس جہاں کے اندر بھی اپنی غلطی کا ازالہ دینا پڑتا ہے. نیوز سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.